अब मेरा मंचासीन विद्वान वक्ताओं से यह विनम्र निवेदन है कि वे ज्ञान की प्रति इस दीप ज्योति को प्रज्वलित करते हुए स्वामी विवेकानंद जी को पुष्पांजलि समर्पित करें। धन्यवाद आप सबका। मेरा निवेदन है अध्यक्ष छात्र कल्याण विभाग प्रोफेसर प्रकाश अंतहर जी से कि वे सभागार में उपस्थित सब अतिथियों का विधिवत रूप से स्वागत करें। प्रोफेसर प्रकाश अंतहर सर। After eyes in the audience, very good morning to all of you. It is indeed a matter of pride and privilege for me to formally welcome you all. At the very outset, I, on behalf of the Department of Students Welfare and on my own behalf, extend a warm welcome to Professor Manoj Kela, our esteemed Vice Chancellor and Chief Guest of today's function. Sir, it is your constant support and guidance which has made it possible for us in the Office of Dean Student Welfare to remain vibrant even during the very difficult times of 2020. Thanks a lot for your continuous support and guidance to the department. I also very warmly welcome Reverend Swami Anandanandji from Ramakrishna Mission Jammu, who is our keynote speaker today. Swamiji, besides being an accomplished spiritual guru, has contributed to the society in many ways. He joined Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission Branch Center at Rajkot, Gujarat in 2000, where he served as warden in students' home. He served earthquake victims in Gujarat in 2001. He also served Rajkot Center till March 2004. He had been the headquarters Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission, Vellore Mutt, Howrah, West Bengal, training center for 2 years between 2004 and 2006.
where scriptures and music is taught to the monks. After completing his tenure at training center, he was posted at Ramakrishna Math, Nagpur, Maharashtra in March 2006, where he did extensive work among the school and college students. He was in charge of youth activities such as youth forum and different competitions among the students. He also shouldered the responsibility of cleanliness drive in slum areas of Nagpur. In 2016, he was posted at Ramakrishna Mission Ashram, Aurangabad, Maharashtra, where he did drinking water relief work in the drought-prone areas of Marathwada region. Presently, he is posted at the Ramakrishna Mission Center, Jammu. Swamiji, we feel blessed by your presence, and the topic which we have selected for your lecture today is definitely going to benefit all of us, given the fact that we are still struggling with COVID-19 pandemic and need mental solace. A warm and hearty welcome to Professor Arvind Jasrotia, our registrar and guest speaker today. Professor Jasrotia's interest in spirituality, especially in Vedanta, goes back to 1980s when we were students, and he would share his thoughts with us in hostels. It would be quite enlightening to listen to him on spirituality after a very long time. I also extend my warm welcome to heads of various teaching departments, young faculty members, officers, members of non-teaching staff, research scholars and students. Our special welcome to media persons. We have always received your support from time to time in terms of coverage of our events in the past, and I am hopeful that you will continue to highlight the activities of the department and the university as well. Friends, it's a great occasion that we have gathered here to celebrate birth anniversary of youth icon Swami Vivekananda as National Day in order to commemorate the monumental work done by our great saint and philosopher. Swamiji, through his discourses, succeeded in dispelling the poor image of India created deliberately by the colonial power of the time. Although 12th January celebrated India as a National Youth Day by various organizations, the UGC this time has specifically requested that universities and colleges across the country should organize such programs to highlight the contribution of Swamiji, and it is in this context that we have planned this program. We as students, Department of Students Welfare, which is otherwise known for its commitment to the cause of promoting art and culture, too found itself caught in a very difficult situation during 2020 because of COVID-19 pandemic. But with tireless efforts of a very dedicated and cohesive team, with our cultural secretary Ms. Ifra Kak on the forefront, and under the guidance of my predecessor, Professor Jasveer Singh, Professor Anupama Bora, and all the members of Campus Culture Committee, we have been successful in creating a seamless system which has enabled us to continue the work which we are supposed to do. We have launched a plethora of online initiatives, and by live streaming our programs on Facebook and YouTube, we have been able to reach out to our students and also to the society at large. After a long time and on a positive note, we have all come together in person to celebrate this auspicious day, and I am sure that with the blessings of our saints and gurus, things will improve and we would be able to organize such programs at larger scale quite frequently in the near future. With these words, I once again welcome you all. Thank you. धन्यवाद सर। स्वामी अनंतरानंद जी से अब मेरा विनम्र निवेदन है कि वे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और उनके मूल सिद्धांतों से सभागार में उपस्थित सब लोगों को अवगत करें। स्वामी जी। ओम नमः श्री यतिराजाय
विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापारे। मंच पर उपस्थित आदरणीय वाइस चांसलर श्री प्रोफेसर धर साहब, आदरणीय अंथाल जी, आदरणीय जसरूटिया सर, आदरणीय ओरा मैडम, उपस्थित छात्र छात्राओं तथा अन्यान्य प्रोफेसर्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ who is assembled here to listen a speech on स्वामी विवेकानंद। बड़े आनंद का और मैं स्वयं को बड़ा हर्ष अनुभव कर रहा हूं कि इस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आज यहाँ 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, लॉकडाउन के बाद पहली बार एक ऑफलाइन प्रोग्राम में इसे कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को बड़ा ही आनंद मैं अनुभव कर रहा हूं। जैसे कि मुझे विषय दिया गया है स्वामी विवेकानंद के जीवन के मूल सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद का अगर हम जीवन काल देखते हैं, मात्र 40 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के द्वारा संपूर्ण विश्व को संदेश दिया है, कुछ सिद्धांत दिए हैं। इसलिए कहते हैं, एक मनीषी कहते हैं, पाश्चात्य मनीषी कहते हैं, वन ऑफ द वेस्टर्न फिलोसोफर्स, दैट वास्को द गामा had discovered the soil of America, whereas स्वामी विवेकानंद discovered the soul of America। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने जब 11 सितंबर 1893 में, जब स्वामी विवेकानंद ने, जो सब हम परिचित है उस व्याख्यान से, जो विश्व भर में वह व्याख्यान बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ उस समय भी, और उसके बाद जो स्वामी जी को एक प्रसिद्धि मिली, पॉपुलैरिटी मिली, और हम देखते हैं कि उस भाषण का अगर हम सारांश देखते हैं तो उस भाषण का सारांश भी हम आज के परिप्रेक्ष्य में वह बड़ा प्रासंगिक है, काफी प्रासंगिक है। उस विषय में हम बाद में जाएंगे, लेकिन जो स्वामी जी के जो मूल सिद्धांत, जो विषय मुझे दिया गया है, उसमें बहुत से सिद्धांत स्वामी जी के हैं जो आज के सभी वर्गों के लिए, विशेष करके स्वामी जी का जो रहा वो युवाओं को लिए, हम कहते हैं कि युवाओं को स्वामी जी ने प्रेरित किया है सब समय। उनके भी समय वे करते थे, बाद भी और आज भी उसी तरह वे अपने किताबों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, न अभी बल्कि सभी वर्ग के मनुष्य को वे प्रेरित कर रहे हैं, सभी आयु के, सिर्फ युवाओं के लिए नहीं। स्वामी जी का अगर हम विचार देखते हैं तो विभिन्न उनका साहित्य जब पढ़ते हैं तो हम देखेंगे, जैसे अभी कहा इफ्रा काक मैडम ने जैसे अभी कहा कि कोविड के बाद हमें सबको मन शांति की बहुत जरूरी है, तो सिर्फ कोविड के बाद की बात नहीं है कि मनुष्य की जो दौड़ भाग जो चल रही है वह शांति पाने के लिए ही चल रही, आनंद पाने के लिए ही चल रही है। किसी को भी हम अगर प्रश्न पूछेंगे, अच्छा किसको ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे आनंद नहीं चाहिए? कोई व्यक्ति, हर एक को आनंद, हर एक जन जो दौड़ भाग कर रहा है वो आनंद प्राप्त करने के लिए ही दौड़ भाग कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि इतना तो साइंस टेक्नोलॉजी पहले की तुलना, आज से 100 साल पहले की अगर बात करेंगे तो उसकी तुलना में तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन क्या मनुष्य उसी प्रपोर्शनेटली वहां सेटिस्फाइड है, वहां सुखी है, कंफर्ट उसे मिला है, लेकिन क्या उसे आनंद मिला है? जिसकी वो खोज में रात दिन, जिसकी वो खोज कर रहा है,
क्या उसे वह आनंद मिला है? इसलिए स्वामी विवेकानंद का जो पहला जो मूल सिद्धांत जिसके हम ऊपर चर्चा करेंगे, जो ऑनलाइन जो काफी युवक देख रहे होंगे, तो हम स्वामी विवेकानंद का पहला एक मूल सिद्धांत जो लेंगे। स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मिलेगा तो मैं सबसे पहले आई विल लर्न द टेक्निक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन rather than collecting the facts of different field। अच्छा, क्यों ये स्वामी जी कहते हैं कि मुझे अगर अगला जन्म मिलेगा तो मैं पहले कॉन्सेंट्रेशन सीखूंगा, एकाग्रता सीखूंगा। हम सबके लिए यह सिद्धांत बहुत आवश्यक है, सबके लिए, फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए। वहां साधु हो, सन्यासी हो, प्रोफेसर हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, स्टूडेंट हो, सबके लिए यह सिद्धांत बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद इसी सिद्धांत को लेकर कहते हैं कि जो व्यक्ति व्यक्ति में जो हम भेद देखते हैं, जो व्यक्ति व्यक्ति में हम भेद देखते हैं, हम देखते हैं अगर कॉलेज में प्रोफेसर की बात करें, कोई प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्वामी जी ये कहते कि इसके पीछे का क्या प्रिंसिपल है, क्या साइंस है, क्यों ऐसा होता है। एक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जहां सब स्टूडेंट्स उनका क्लास सुनने के लिए आते, जैसे हमने भी हमारे जीवन में स्टूडेंट लाइफ में यह अनुभव किया। तो ये भेद कहाँ है, ये भेद कहाँ है? अच्छा, स्कूल में कॉलेज में हम देखते हैं कि एक ही स्टूडेंट, एक ही प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, सेम एज सेम क्लास, एक स्टूडेंट वो यूनिवर्सिटी टॉपर होता है, एक बच्चा फेल करता है। सेम एज है, एक प्रोफेसर है, एक ही बात सबको पढ़ा रहे क्लास में, लेकिन एक यूनिवर्सिटी टॉपर होता है, एक फेल होता है। तो स्वामी जी कहते हैं ये जो भेद है, ये बड़े समझने की बात है। ये जो भेद है, ये भेद इट इज बिकॉज ऑफ डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, नॉट बिकॉज ऑफ फिजिकल ब्रेन। फिजिकल ब्रेन के वजह से नहीं है डिफरेंस, हमेशा ये हमें ख्याल रखना चाहिए। फिजिकल ब्रेन के वजह से नहीं, फिजिकल ब्रेन के वजह से नहीं। अगर फिजिकल ब्रेन के वजह से अगर होता तो वहां जो व्यक्ति फेल हो रहा है, हम कितने तो भी आप देखते हैं, जब हम स्वामी जी की यह बात, मैं बहुत से स्कूल कॉलेजेस में मेरा अनुभव है, जहां जाता हूं वहां ये जब चीज मेरे बच्चों को बताता हूं, और बच्चे जब इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो उनके जीवन में बड़ा अमूलाग्र बदल आ जाता है काफी। तो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का ये जो भेद है व्यक्ति व्यक्ति में, वहां जो भेद है, एक गोल्ड मेडल देता है स्पोर्ट्स में, बराबर है, एक एकदम पीछे रहता है, तो वो क्या, तो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। तो यह जो एकाग्रता है, तो यह स्वामी विवेकानंद कहते हैं यह एकाग्रता हमें बढ़ानी चाहिए। तो ये जो भेद बच्चों को हम जब बताते हैं, बच्चे क्या समझते हैं, हम पेरेंट्स भी कभी कभी हम बच्चों को बोल देते हैं, अरे तू तो कोई एग्जाम में कुछ अच्छा करने वाला नहीं है, तुझे तो थोड़ा दिमाग कम है, बराबर। हम अक्सर स्कूल में भी देखते टीचर बच्चों को ऐसा कहते हैं, लेकिन उसके पीछे का साइंस हमें पता नहीं है। जो स्वामी जी ने कहा है, ये जो भेद है, ये एकाग्रता का भेद है। आप बच्चों की एकाग्रता बढ़ाइए, मैंने एक जगह ऐसे ही कहा था, तो एकाग्रता बढ़ाइए तो यू विल नॉट इमेजिन। जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट था, he got 84% when he completed his degree course, 84%। इसी से जब उसे पता चला, वो फेल हो गया था, इंजीनियरिंग में था, वो फेल हो गया, सेकेंड ईयर में फेल हुआ, थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिला, काफी डिप्रेस हो गया। राठौड़ करके उसका नाम है, जब मैं नागपुर में था तो किसी ने तो भी उसको बताया कि रामकृष्ण मिशन में जाओ, ये ठीक हो जाएगा लड़का। तो आया, जब आया तो देखा उसके माँ के साथ आया, डिप्रेस पड़ा हुआ है, कुछ नहीं। उससे जब बात कर रहा हूं तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, नैराश्य छा गया है फेल होने के कारण। तो मैं उसके माँ को बोला, एक काम करो आप इसको आश्रम भेजा कीजिए। तो वो आने लगा, आश्रम आने लगा। तो धीरे धीरे जब उसको पता चला कि ये मेरे बुद्धि के कारण नहीं, जब उसको बोलते थे घर वाले, अरे तू तो पढ़ाई नहीं करता, तेरा तो दिमाग ही काम है, लेकिन जब उसको बताया कि देखो स्वामी जी ने कहा है मनुष्य में जो भेद है वो तुम्हारा फिजिकल ब्रेन के कारण नहीं,
इट इज बिकॉज ऑफ योर इंटेलेक्ट, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आपका आप में एकाग्रता कम है इसीलिए। लेकिन वो जो कम है एकाग्रता वो हम बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे हम बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे उससे हम बढ़ा सकते हैं। जो आज यूनिवर्सिटी टॉपर आ रहा है उसके भी आगे हम निकल जा सकते हैं, इतनी हम अगर हम चाहे तो। जब उसे ये चीज पता चला तो देखिए वहां जब जितने भी उसके बैकलॉग थे सब एक स्ट्रोक में सब के सब अबाउट 60% फर्स्ट क्लास में सब पास किए, और जब डिग्री खत्म हुआ ये पास विद 84%। और बाद में वो खुद फिर मोटिवेशनल अभी एज ए स्पीकर करके अलग अलग कॉलेजेस में वो जाता है, जो वंस अपॉन टाइम ही वाज डिप्रेस्ड। तो हम जो जो बोलते हैं बच्चों को, जब बोलते हैं कि आपका फिजिकल ब्रेक का प्रॉब्लम नहीं है, आप एकाग्रता बढ़ाइए, एकाग्रता बढ़ाइए। आप कोई भी फील्ड में, स्वामी जी जो कहते हैं ना, क्योंकि स्वामी जी को जब ये रियलाइज हुआ कि जब मेरी एकाग्रता परफेक्ट होगी तो मैं जिस फील्ड में हाथ डालूंगा, कहीं भी जहां मैं हाथ डालूंगा, आई विल गेट सक्सेस देयर। वो चीज, जो चीज जिसकी एकाग्रता अधिक है वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति की तुलना वह चीज बहुत जल्दी ग्रास्प करता है। जिसे 1 साल लगेगा सीखने के लिए, जिसकी एकाग्रता अधिक है वह व्यक्ति 1 महीने में उसे सीख लेगा। यह फर्क एकाग्रता का, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, और यही एकाग्रता हर फील्ड में, हर फील्ड में। तो इसे कैसे डेवलप किया जाता है एकाग्रता को? एकाग्रता माने क्या है? स्वामी जी कहते कि एकाग्रता, जैसे उसी शब्द में उसका अर्थ छिपा हुआ है। ये हमारे हर एक के लिए स्वामी जी कहते हैं ना कि कोई महिला का हाथ का अन्न स्वादिष्ट होता है, क्या सीक्रेट है? बिकॉज हर डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। उसका उस प्रति, उस व्यंजन के प्रति कोई जो साइंस है, जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्चर है, उसका क्या है? जब वो आविष्कार करता है वो क्यों करता है? बिकॉज हिज लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वाज वेरी हाई, और उसी समय उस आविष्कार को वह प्राप्त कर सकता है, अदरवाइज नहीं। जब तक उसका कॉन्सेंट्रेशन का, तो कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ाते? तो स्वामी विवेकानंद के जीवन की वो घटना मैं आपको बताऊंगा। तो हम हर व्यक्ति, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में वह हुआ, हमारे जीवन में वह नहीं हो सकता, नहीं तो फिर यह स्पीच देने का कुछ औचित्य नहीं है। वो हमारे हर एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में वह हम उसको इंप्लीमेंट कर सकेंगे, सिद्धांत स्वामी जी के, वही उनके उस सिद्धांतों का यहाँ चर्चा करने में कोई लाभ है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जब नीरज में थे, नीरज में जब उनके परिभ्रमण काल में, तो एक जगह वहां जिनके यहाँ रुके थे उसके बगल में एक लाइब्रेरी थी। तो उन्होंने कहा मेरी लाइब्रेरी है, मैं तो यहाँ 6-7 दिन अभी हूँ। तो उनके अपने मित्रों को कहा कि आपके उस लाइब्रेरी से मुझे एक किताब बताया, एनसाइक्लोपीडिया करके। तो उसका एक प्रथम खंड वो लाके दिया, पढ़ा स्वामी जी ने, उसको दूसरे दिन वापस कर दिया। दूसरा खंड लिया, दूसरे दिन दूसरा खंड पढ़ लिया, वापस कर दिया। ऐसे 6-7 खंड थे वहां। तो वो एक जिसको बोलते 7 पार्ट, उसके 7 वॉल्यूम्स जिसको हम बोलते। तो पहले दिन तो 7 दिन में 7 वॉल्यूम स्वामी जी ने एनसाइक्लोपीडिया के पढ़ लिए। अब वो जो ग्रंथपाल महालाइब्रेरियन था, उसने वो जो व्यक्ति स्वामी जी के लिए किताबें लेने के लिए आता था, उससे कहा देखो ये जो वाक्य जो स्वामी जी रोज एक वॉल्यूम लेके जाते हैं एनसाइक्लोपीडिया का, दूसरे दिन वापस करते हैं, वो तो शायद इंप्रेशन जमाने के लिए कि देखो मैं एक दिन में पढ़ सकता हूँ, और दूसरे दिन दूसरा वॉल्यूम लेके जाता है। ऐसा तो हमने कभी जीवन में, मैंने मेरे कार्यकाल में कभी देखा नहीं। तो वहां जो स्वामी जी का मित्र था वह स्वामी जी को आके बताता है, देखो लाइब्रेरियन तो ऐसा कमेंट कर रहा था आपके ऊपर, तो आपको तो क्रिटिसाइज कर रहा था कि आप बड़ी डीक कर रहे हैं, बड़ा खुद को ये समझते हैं, तेजस्वी समझते हैं, और आप रोज एक वॉल्यूम वापस करते हैं। अरे भाई आपको नहीं पढ़ना है तो आप क्यों लेके जा रहे हैं? अगर आपको पढ़ना ही नहीं है, एक दिन में कोई एक वॉल्यूम पढ़ सकता है। तो स्वामी जी कहा चलो तुम्हारे उस लाइब्रेरी के पास चलो, और जाते हैं। जाके उस लाइब्रेरी को कहते हैं देखो मैं तो 7 वॉल्यूम पढ़ा हूँ, आप जो प्रश्न चाहें 7 वॉल्यूम में से आप पढ़ सकते, आप मुझे पूछ सकते हैं। और लाइब्रेरी ने वो 7 वॉल्यूम में से एक प्रश्न पूछना शुरू किया। हमें आश्चर्य लगेगा कि स्वामी जी ने उन सभी प्रश्नों के तो उत्तर दिए ही दिए, इतना ही नहीं,
उस लाइब्रेरियन को कहते थे कि देखो तुम इस पेज नंबर से यह क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं और इस वॉल्यूम में वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर एंड समटाइम्स स्वामी जी ने कहाँ ये सेकेंड पैराग्राफ से पेज नंबर एंड आल्सो विद द विच पैराग्राफ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन वो भी वहां बताया है। तो बड़ा अवाक हो गए वहां सब जो उपस्थित थे। तो वे पूछे स्वामी जी इट इज अ मिरेकल। स्वामी जी सेज नो, इट इज नॉट द मिरेकल। यह चमत्कार नहीं है, यह किसी के भी लिए संभव है। इसलिए सिद्धांत जो स्वामी जी देते हैं ना कि यह जो एकाग्रता जो है तो यह अगर चमत्कार होने से फिर तो ही इज बिकम एक्सेप्शनल देन अदर्स। स्वामी जी कहते नहीं, चमत्कार हम देखते हैं ना, कभी कभी कोई बाबा जी वगैरह देखते हैं, अगर वो कोई चमत्कार करते हैं तो ही बिकम्स द एक्सेप्शनल, वो दूसरा कोई कर नहीं सकता। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं ये चमत्कार नहीं है, इट इज नॉट ए मिरेकल। कोई भी कर सकता है लेकिन उसकी एक कंडीशन है। हम देखते हैं, हम यहाँ छात्र है, साइंस के छात्र है, कोई दूसरे फील्ड के छात्र है, तो कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए उसकी एक आचार संहिता होती है। आपको उसी ढंग से जाना पड़ेगा तभी उस चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी, जैसे आप माउंट एवरेस्ट अगर आपको जाना है तो आपको पूरी गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगी, उसी तरह से गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगी तभी वहां जाना संभव है। आपको स्विमिंग सीखना है, आपको एक पर्टिकुलर गाइडलाइन फॉलो करना है, मैनुअल जिसको हम बोलते हैं, हाँ वो फॉलो करने से आप ठीक ठीक स्विमर बन सकते हैं। तो वैसे ही स्वामी जी कहते हैं ये संभव है लेकिन उसकी कुछ क्राइटेरिया है, वो फॉलो करेंगे तो आप भी मेरे जैसे ही बनेंगे। हमारे यहाँ बड़े काफी छात्र आते हैं, जब वो फेल हो जाते हैं ना तो उनको बताया जाता है कि आप आश्रम में जाइए तो स्वामी जी के जैसे आप वो पढ़ पाओगे। तो बच्चे पूछते, हमें यूथ फोरम में चलाता था वहां नागपुर में, तो बच्चे पूछते थे कि स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद तो एक दिन में किताब पूरा याद कर लेते थे, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? मैं बोला हाँ हो सकता है, स्वामी जी ने खुद कहा है ये सबका हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, वो वहां 99% भी नहीं चलेगा, वहां 100% चाहिए। तो क्या? तो स्वामी जी ने कहा कि अगर इस प्रकार की एकाग्रता आप चाहते हैं तो फर्स्ट योर माइंड मस्ट बी वेरी प्योर। हमारे मन में हमारा मन जितना स्वच्छ होगा उतना आप इस चीज को कर पाओगे। जितना आपका मन स्वच्छ होगा आप उतना ही इस चीज को प्राप्त कर सकोगे। तो जो इम्प्योरिटीज हमारे माइंड में है, व्हाट इज द इम्प्योरिटीज? इम्प्योरिटीज बहुत सारे, हमारे किसी के प्रति हमारा द्वेष है, कोई हमारा अपमान करता है तो उसके प्रति गुस्सा आता है, तो कितनी प्रकार की इम्प्योरिटीज हमारे मन में है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब तक वो कॉन्सेंट्रेशन, जब तक वो इम्प्योरिटीज हमारे मन में है तब तक वहां व्यक्ति जीवन में कभी शांति भी नहीं पा सकता। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जब तक वो, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज हमें सताती है। यह साइंस है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें मन की शांति चाहिए, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के जो पद्धति है, उपासना पद्धति है, वह सबसे पहले आपको यही सिखाती है कि पहले आपको आपके मन को पवित्र करना है। वेरी कॉमन, जब किसी टैंक में अगर पानी वहां का प्योर है, क्रिस्टल वाटर है, वी कैन सी द वाटर वेरी इजीली विदाउट एनी एफर्ट। आप देखिए कोई एक टैंक है, वो एकदम पानी क्रिस्टल है, यू कैन सी इट्स वाटर वेरी इजीली। लेकिन अगर उसी में ही अगर कहीं कुछ कचरा है या तो कुछ उसमें कीचड़ है तो हम उस जो उसका जो बॉटम है वो बॉटम हम, द सेम विद अवर माइंड, द सेम विद अवर माइंड। स्वामी जी कहते हैं यही हमारे, इसलिए मैंने कहा ना फिजिकल ब्रेन एंड इंटेलेक्ट की जो बात करते हैं स्वामी जी, एकाग्रता, ये दोनों एक अलग चीज है। क्यों? एकाग्रता इज कंसर्न विद अवर दैट इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हमारी एकाग्रता जिस हम बढ़ाते, जिसको धी कहते हैं, बुद्धि हम कहते हैं ना, बुद्धि। फिजिकल ब्रेन इज डिफरेंट, बुद्धि इज डिफरेंट, बुद्धि इज सटल, फिजिकल ब्रेन इज ग्रॉस। उसे हम देख सकते हैं, इसको अगर फाड़ेंगे तो अंदर हम फिजिकल ब्रेन देख सकते हैं, इट इज ग्रॉस, whereas the intellect it is a very subtle,
इट इज अ वेरी, जिसे हम नहीं देख पाते लेकिन वह विद्यमान है। कोई हमें डांटता है, हमारा अपमान करता है, तो हमें गुस्सा आता है, नहीं? अच्छा, उसको हम कहाँ अनुभव करते हैं बताइए कोई? उसे हम कहाँ अनुभव करते हैं? है ना, हम क्या करते हैं, आज मेरा मन अच्छा नहीं है ना, तो मन को तो हमने किसी ने देखा नहीं, देखा ग्रॉसली, इट इज नॉट ग्रॉस। द माइंड इज एंटिटी, इट इज नॉट ए ग्रॉस, जस्ट लाइक ए ब्रेन, फिजिकल ब्रेन है ना, वो देख सकते हैं हम उसको, लेकिन दिस माइंड इज नॉट ए ग्रॉस, इट इज अ सटल, बट इट इज देयर, वहां है। दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट, जो इस इंस्ट्रूमेंट से हम हमारे जीवन को अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। इसलिए भगवत गीता में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, बड़ा सुंदर श्लोक आता है, उद्धरे आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादये, आत्मा एव आत्मनो बंधु, आत्मा एव रिपुआत्मनः। ये बड़ा सुंदर उदाहरण है, बड़ा सुंदर। हम जब दुखी होते हैं तो हम हमेशा क्या करते, हम जो हमारा अपमान करता है ना, उसे हम दोष देते हैं, है ना? जनरली ऐसे ही होता है, क्या हमारा जो कोई नुकसान करता है उसके लिए हम उसे दोष देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि उद्धरे आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादये, आत्मा एवं आत्मा बंधु, आप खुद ही आपके सबसे बड़े मित्र है। अगर आप जब आपने उस माइंड को अगर ठीक ढंग से हैंडल किया, तो अगर नहीं किया तो आपके जैसा शत्रु कोई नहीं, आपके जैसा शत्रु कोई नहीं। क्यों कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये? अब स्वामी जी का यहाँ दूसरा सिद्धांत आता है, स्वामी जी का दूसरा सिद्धांत यहाँ आता है। पहले एकाग्रता का हो गया, दूसरा आता है स्वामी जी का यहाँ सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत। स्वामी जी कहते हैं विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास। पहले का धर्म कहता था कि जिसका देव देवताओं के ऊपर विश्वास नहीं वह नास्तिक है, और जिनका देव देवताओं के ऊपर विश्वास है वह आस्तिक है। लेकिन मैं एक नया धर्म कहता हूं, स्वामी जी कहते हैं कि मैं एक नया धर्म कहता हूं आज से। यही जो क्रांतिकारी जो लोग होते हैं ना, इसलिए उनको क्रांति, क्यों? ये नया कुछ सृजन करते हैं, इसलिए हम उनको क्रांतिकारी कहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं मैं नया धर्म कह रहा हूं कि जिसका खुद के ऊपर विश्वास नहीं वह नास्तिक। भले आपके लाखों देव देवताओं के ऊपर विश्वास है, लेकिन खुद के ऊपर अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप नास्तिक है। भले आपका विश्वास आपके अन्य देवताओं के ऊपर हो, लेकिन खुद के ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो आप नास्तिक है। यहाँ एक नया डेफिनेशन दिया स्वामी जी ने नास्तिक का, नास्तिक और आस्तिक का एक नया डेफिनेशन स्वामी जी ने दिया। अपने ऊपर विश्वास, तो जो भगवान कृष्ण भी वहां जो कहते हैं ना अर्जुन को कि तू ही तेरा सच्चा मित्र है और तू ही तेरा शत्रु है, क्योंकि अर्जुन का क्या हुआ था? स्वामी जी यहाँ कहते हैं जो विश्वास, अपने आप पर विश्वास, यह सब बहुत आवश्यक है। सभी क्षेत्र में विश्वास होना चाहिए। जब आप कोई, अब जैसे मैं यहाँ स्पीच दे रहा हूँ आज क्यों मैं यहाँ स्पीच दे रहा हूँ विदाउट एनी एफर्ट, मुझे कुछ इसके लिए कुछ ज्यादा ऐसे एफर्ट नहीं लेना पड़ता। क्यों? ये विश्वास की वजह से। अगर मैं सोचता अरे मैं नहीं दे पाता हूं, मैं कॉलेज में एक बार हमारे यहाँ सेमिनार था औरंगाबाद में, तो मैं सेमिनार में बोला देखो आप यहाँ जितने बैठे हैं ना, लगभग 400-500 बच्चे थे वो, तो उनको मैं बताया देखो आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं स्पीच दे सकता, मैं नहीं स्पीच देखता, मैं नहीं स्पीच देख सकता हूं, और सच में ऐसा होता है कि आप स्पीच नहीं दे पाते। आपको डर लगता है अरे मैं कैसे जाके स्टेज पे बोलूं। उसका आप उल्टा सोचिए, उसका आप एग्जैक्ट उल्टा सोचिए, अरे मैं क्यों नहीं स्पीच दे सकता हूं? जब मेरे जैसे बच्चे कॉलेज में स्पीच देते हैं मेरे एज के, तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूं? मैं दे सकता हूं, क्या बड़ी बात है उसमें? स्पीच देना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वे लोग आधा घंटा बोल सकते हैं, मैं कम से कम 2 मिनट तो जाके बोलूंगा। ये अगर तुम सोचोगे, क्योंकि स्वामी जी कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, if you read the Swami Vivekananda, there is nothing negative, everything is positive.
तो हम पॉजिटिव विचार करें, हम सकारात्मक विचार करें। अगर हम सकारात्मक विचार करें तो जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अगर हम सकारात्मक विचार करें, यू आर द फ्रेंड ऑफ योरसेल्फ। अगर हम नकारात्मक विचार करें तो आपके जैसा कोई शत्रु नहीं है। देखिए कभी कभी तो हम हमारे बारे में इतना बुरा सोचते हैं कि हमारा शत्रु भी उतना बुरा नहीं सोचता। कभी कभी हम देखते हैं कुछ कारणवश हम सुसाइड कर लेते हैं, हम हमारा जीवन समाप्त करते हैं। अरे शत्रु भी नहीं सोचता आपका खून करे, शत्रु सोचता ठीक है इसे कुछ चोट पहुंचाएंगे थोड़ी छोटी मोटी, लेकिन मनुष्य खुद को इतना कभी कभी उसका शत्रु बना लेता है कि वह पूरा अपना जीवन नष्ट करता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास, यह जो है उन्नति का, व्यक्ति के उन्नति का यह एक बड़ा एक मूल सिद्धांत है। विश्वास होना चाहिए हमारे, विश्वास। इसलिए जब हम वो बच्चे ने जब ये चिंतन चालू किया, यू विल नॉट इमेजिन, वो बच्चा मेरा स्पीच खत्म होते ही स्टेज पे आया, आके जो वहां स्वामी जी थे उनको बोला, दूसरे स्पीकर तुरंत आ गए थे ऐसे पोडियम पे बोलने के लिए, तो बोला मुझे 1 मिनट कुछ बोलना है। तो वो बच्चा आया, आके वो सामने खड़ा, पोडियम के सामने खड़ा होके उसने 2 मिनट तक बात की। बोले आज तक मैं डर रहा था, क्यों? क्योंकि मैं वैसे प्रकार से सोच रहा था, मैं नहीं बोल सकता, तो मैं कभी बोल ही नहीं पाया। लेकिन आज मुझे नई चीज पता चली कि अगर हम जिस प्रकार से विचार करेंगे, गुजराती में बड़ी सुंदर कहावत है, हमारा राजकोट में था 4 साल, जेव चिंतन तेव जीवन, जेव चिंतन तेव जीवन। जिस प्रकार का चिंतन होता है उस प्रकार का हमारा जीवन होता है। बहुत सारे लोग बोलते महाराज आप बड़े ये है, आप तो घरदार त्याग दिया है, आप सन्यासी बन गए, आप बड़े महान हैं। तो मैं बोला देखो वो जो बात है वो आपके इसके है, लेकिन जैसा जिसका चिंतन होता है वैसे उसका जीवन होता है। हमने बचपन से जिस प्रकार से चिंतन किया उस प्रकार से हमारा जीवन बना। तो यह तो सिद्धांत जो है, जैसे चिंतन, स्वामी जी से कहते हैं ना कि जिस प्रकार से आप विचार करेंगे उस प्रकार से आप बन जाओगे। अगर आप पुण्यवान हो, पुण्य कर्म करते हो, लेकिन खुद को अगर पापी 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 बोलोगे तो पापी विल बिकम, दो यू आर डूइंग गुड एक्ट्स, लेकिन खुद को अगर पापी पापी कहोगे तो यू विल बिकम पापी। लेकिन कोई व्यक्ति जो पापी है और वो कहता हो कि नहीं मैं पुण्यवान हूं, तो वह विचार एक दिन कार्य में परिणित होगा ही होगा। डेफिनेट स्वामी जी का यह जो एक मूल सिद्धांत है ना, विश्वास, हम जो कुछ चिंतन करेंगे वहां, लेकिन वह चिंतन स्वामी जी कहते हैं इट नॉट बी सुपरफिशियल, वहां चिंतन सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं अरे मुझे यूपीएससी पास करना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, ये करना है। बहुत सारे बच्चे सोचते स्टार्टिंग में कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। अच्छा, वो शुरू भी करते हैं अभ्यास, पढ़ाई भी शुरू करते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद छोड़ देते हैं। तब बोलते नहीं अपने बस की बात नहीं है, और वे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास अपने ऊपर का, इसलिए स्वामी जी कहते हैं यह विश्वास नहीं खोना चाहिए। जब तुम विश्वास खो दिए आप कुछ नहीं है। और जिस प्रकार का चिंतन करेंगे, जिस दिन आपने चिंतन किया मैं यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। और लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि जो चिंतन आप लेंगे ना उसी को एकाग्रता और वहां आता है। जो चिंतन आप लेंगे, जो ध्येय को आप लेके चलेंगे, यू हैव टू डिस्कार्ड ऑल अदर थॉट्स फ्रॉम योर माइंड, यू हैव टू डिस्कार्ड ऑल अदर थॉट्स। आपको फिर उसी का चिंतन करना चाहिए। स्वामी जी बोलते फिर उसी ध्येय के आपको सपने गिरना चाहिए, उसी विचार का आपके मांस और पेशियां बननी चाहिए, और उसी चिंतन का आपका खून बनना चाहिए। अगर उस विचार से अगर आपको ऐसा प्रतीत होता तो समझ लेना आपके जीवन में सक्सेस बहुत दूर नहीं रहा है। और जिनके भी जीवन में हम सक्सेस देखते हैं तो यही जो स्वामी जी का यह जो एक सिद्धांत है ना, कोई भी एक विचार को पकड़ो, उसे अपना चिंतन बनाओ, उसे जियो, उसके सपने गिरना चाहिए, और उसकी उसी चिंतन की मांसपेशियां हमारी बने, तो समझ लेना
आप सारी दुनिया भी अगर आपके खड़ी रही अगेंस्ट, सारी दुनिया भी अगर आपके अगेंस्ट खड़ी रही, तो भी वह शक्ति इतनी रहती है कि वह सारी शक्तियों को प्राप्त करती है। इतनी पावर आती है। इसलिए मैंने कहा ना, सटल जो मन है, अंतःकरण है, यह एक सटल है, जो है लेकिन तो यह जो जैसे कहा कि जो हमने देखा, मुझे लगता आधा घंटा हो गया सर ना, तो मैं 5 मिनट में समाप्त कर देता हूं। तो अगर किसी कोई कुछ क्वेश्चन रहा तो पूछ सकते हैं, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद तो उसके लिए 5 मिनट हम देंगे, क्योंकि मेरा एक रहता है कि यहाँ तो क्या वन साइड हम बम्बार्डिंग कर रहे हैं आपके ऊपर, आप पता नहीं आपको अच्छा लग रहा नहीं लगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन एंड आंसर, वहां क्या होता है, वहां आपको क्या चाहिए वहां एक प्रतीत होता है। क्योंकि हम जो भी स्पीच के लिए, भाषण के लिए जाते हैं, तो एक हमारे इसमें रहता है कि नॉट जस्ट फॉर इवेंट कि हम गए भाषण दिया, नहीं, हमारे अंदर एक रहता है कि जब हम जाते हैं तो वहां जो भी उपस्थित ऑडियंस है उसको कुछ तो भी मिलेगा, तो उसको कुछ जो चाहिए वो हम उसे देने का एक प्रयास करें, ऐसे रहता है। तो इसलिए जो जिसके ऊपर हम चिंतन कर रहे थे कि वो हमारा एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होना चाहिए, जिससे हम कह रहे थे कि वहां अंतःकरण, एकाग्रता, विश्वास, एकाग्रता। तो एकाग्रता बढ़ाने के अलग अलग टेक्निक्स है, बढ़ता है, लेकिन उसके लिए जो एक क्राइटेरिया कहा है ना, प्यूरिटी ऑफ माइंड, दैट इज द एसेंशियल। तो स्वामी जी ने जो कहा है, आप कोई भी क्षेत्र में जाइए, कोई भी क्षेत्र में, और चिंतन हमेशा, आप में कितनी भी बुराई होने दो, आप में कितने भी निगेटिव चीजें होने दो, लेकिन उसके बारे में अगर चिंतन करोगे वैसे ही हो जाओगे। कितने तो भी बच्चों, ये मैं सब जो आपको कह रहा हूं ना, ऑल फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस, मैं आपको किताबी एक भी चीज नहीं, हाँ सिर्फ स्वामी जी का सिद्धांत लिया हूं, और आपको जो कुछ बता रहा हूं, मेरे पिछले 10 साल में जो भी यूथ जुड़े हैं, बहुत सारी जगह व्याख्यानों के लिए जाता हूं, वहां से भी बच्चों के फीडबैक आते हैं, तो मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरा भी, ठीक जो दे रहा हूं बच्चों को, और वो अगर वो पालन कर रहे तो मिल रहा है बच्चों को जो चाहिए वो मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि प्यूरिटी ऑफ माइंड, तो इसलिए कहते हैं एकाग्रता की एक चीज, अदर थिंग शुड बी डिस्कार्डेड, तभी वहां उस चीज में हम एकाग्रता पा। तो वो टेक्निक आपको बढ़ाना है। इसलिए कहते हैं ना कि भरत अंधारी करके आपने नाम सुना होगा, भरत अंधारी इज नाउ कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर एट मुंबई। वहां डिग्री कॉलेज में ही वाज अ वेरी बिलो ऑर्डिनरी स्टूडेंट। वो डिग्री कोर्स he passed with about 40% like that. हाँ उसे he had benefit of his caste reservation, वो बात अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 8 अटेम्प्ट दिया। इन लास्ट अटेम्प्ट, आई थिंक दे हैव सम मोर अटेम्प्ट्स देन अदर ओपन कैटेगरी, तो उन्हें ज्यादा अटेम्प्ट थे, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था, उसे विश्वास 8 बार वहां फेल हुआ, 8 बार। तो उसके लाइफ के इसमें लिखते हैं कि कहते हैं कि फेल्यूर इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस। वो बोलते मैं तो फेल्यूर का तो पूरा अक्की सीढ़ी ही चढ़ा हूं, 8 बार फेल हुआ, लेकिन एक था उसके इसमें कि मैं क्रैक करने वाला। वो उसके इसमें लिखता है, उसकी जो बुक है उसमें वो लिखता है, मराठी में वो बुक का नाम है गरुड़ झेप करके। तो उसमें वो लिखता है कि मुझे पता था मैं यूपीएससी क्रैक करने ही, तो देखिए 8 बार भी फेल होने के बावजूद वह व्यक्ति बोल रहा कि मैं क्रैक करने वाला ही। क्यों? क्योंकि उसको अपने में वो विश्वास था, चिंतन पॉजिटिव था। और वैसे ही होता है, जैसे चिंतन वैसे जीवन। इसलिए हमारा जीवन शांतमय है कि अशांतमय है, वह हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि वह हमारे हाथ में है। हमने देखा है, स्कूल में भी देखा है, कॉलेज में भी देखा है, कोई प्रोफेसर डांट देते हैं तो हर व्यक्ति के ऊपर देखना अलग अलग रिएक्शन होता है, सबके ऊपर कॉमन रिएक्शन नहीं होती है। जब कोई प्रोफेसर डांट देते हैं तो हमने देखा है कोई स्टूडेंट्स हंस देते हैं, ठीक है,
कोई स्टूडेंट इतनी सीरियसली लेते हैं कि कैंटीन पे आके सिर्फ वो प्रोफेसर को गालियां बकते हैं। चीज एक ही हुई सबके ऊपर, लेकिन एक्शन अलग अलग हुई। क्यों? जैसे जिसका अंतःकरण वैसे वो रिएक्शन हुई। तो किसी को जिसको बहुत बुरा लगा सर का कहना, तो इतना बुरा लगा कि उसके ऊपर सोचने लगा, हो सकता है उसे 2-3 दिन उसी में चले गए। कोई स्टूडेंट है, उसे क्या किया, अरे भाई ठीक है सर तो बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना, अपन क्यों अपना समय बर्बाद करें उसके बारे में मजे में, खत्म बात, भूल गया वो क्या हुआ, सर ने क्या बोला, तो वो एक आनंद नहीं जाना। तो यहाँ आनंद में रहना या दुख में रहना यह हमारे ऊपर है। जो कृष्ण ने कहा अर्जुन को, तो तुम्हारे हाथ में है, तुमको अच्छा मित्र बनना है, तुम्हारा या शत्रु बनना है, आनंद में रहना है नहीं रहना, यह हमारे हाथ में है। और ये फैक्ट है, इट इज अ फैक्ट। संतों से महापुरुषों से हम यही, स्वामी जी की जीवन कितना अपमान सहना पड़ा। जब वे अमेरिका में गए कितना अपमान सहना पड़ा स्वामी जी को, है ना। हमको वे लोग ब्लैक कहते हैं ना उधर अमेरिका में, तो स्वामी जी के ड्रेस को लेके कितना, एक जगह तो स्वामी जी के ड्रेस को खींचा कुछ लोगों ने, क्या तुम्हारा ड्रेस है, हाँ। तो स्वामी जी ने उनको कहा कि देखो कि हमारे इंडिया में ड्रेस से आदमी नहीं बनता है, सूट, वहां तो सब सूट बूट वाले हैं। हमारे यहाँ हमारा जो ड्रेस से हमारे यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं है, महानता नहीं है। हमारे यहाँ जो व्यक्ति की महानता है वह नंगा भी है, फकीर भी, वह एक वस्त्र अपने ऊपर नहीं पहनता होगा, लेकिन अगर वह चारित्रवान है तो वह आपके इस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से वी गिव हिम हाई रिस्पेक्ट। नंगा है, उसको बदन में कोई कपड़े नहीं है, लेकिन उसका जीवन उज्जवल है, चारित्र है समाज के लिए, तो वह अपने एक खुशियां बांटने की कोशिश करता है। ही हाईली रिस्पेक्टेबल फॉर अस देन योर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो इस प्रकार का स्वामी जी कहते कि हमारे इंडिया में हमारे यहाँ ड्रेस से आदमी नहीं बनाता, टेलर ने आदमी बनाता, हमारे यहाँ चरित्र आदमी बनाता है। तो इस प्रकार का स्वामी जी का यह जो विभिन्न जो हमारे जीवन को एक उन्नत बनाने का, स्वामी जी का तो वही था। स्वामी जी ने कहा कि जब तक मैं आता रहूंगा, जब तक कि एक स्ट्रीट डॉग भी मुक्ति नहीं पाया होगा। क्यों? मुक्ति में सबसे ज्यादा आनंद होता है मनुष्य को। तो मेरे जीवन का लक्ष्य वही है कि इस रास्ते का कुत्ता भी मुक्ति पा सके, उसके लिए मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार जन्म, लेकिन मैं आते रहूंगा। और स्वामी जी ने तो कहा है कि इस मेरे विचार दृष्टा ही प्रोफेसाइज मेनी थिंग्स। आज समय नहीं है, प्रोफेसाइज में जितने भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी सबके सब सारे, सिर्फ एक ही भविष्यवाणी बाकी है, दैट इंडिया विल बिकम ए विश्व गुरु। वो उनका प्रोफेसी जो था, भविष्यवाणी था, वो अभी तक सत्य नहीं हुई, लेकिन वो वहां होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारत विल लीड द वर्ल्ड, इंडिया विल लीड द वर्ल्ड। किससे? थ्रू इट्स स्पिरिचुअलिटी, नॉट विद द मटेरियलिज्म, नॉट विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया विल लीड द वर्ल्ड थ्रू इट्स स्पिरिचुअलिज्म। जो मन की शांति बोलते हैं ना, जो मैडम ने जो जिक्र किया था, वो क्योंकि जब देखेंगे कि सब तो है, सब कुछ है, शांति नहीं है, जीरो। हम देखते हैं कितने मल्टी मिलियनियर्स आते हैं आश्रम में, मतलब देखा हूं, बोलते महाराज जीवन में शांति। अरे एक बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालक है, बोलते महाराज जीवन में शांति नहीं। क्यों शांति नहीं? लड़के का ये क्या बोलते उसको, लड़का तकलीफ, बहू की तकलीफ, बीवी की तकलीफ, झगड़े, ये अरे इतना बड़ा मकान, मल्टी मिलियनियर एक इंडस्ट्री के मालक है, लेकिन बोलते शांति नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इससे हम देख सकते हैं कि मटेरियल चीज हमको, ठीक है, आप जितना चाहे कमाओ ना, आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ख्याल में रखना वह हमें आनंद नहीं दे पाएगा। आपको आनंद जीवन में चाहिए, तो यू हैव टू फॉलो the spiritual practices of that religion
in which you born, फिर वो कोई भी धर्म हो सकता है. Spiritual practice only can give the peace of mind, none else. ये हमेशा कहा करता है. स्वामी जी ने भी कहा है कि हमें हमारी आध्यात्मिक उपासनाएं जीवन में शांति दे सकती है. इसीलिए तो अमेरिका में क्यों लोग अशांत है? इतना सब होने के बाद भी, सब सुविधा होने के बाद भी क्यों अशांत है? भारत का आदमी बहुत, हमारे स्वामी जी, हमारे तो 20 आश्रम है अमेरिका में, तो वहां के स्वामी जी लोग बोलते हैं ना, इंडियंस आर वेरी वेरी हैप्पियर देन द अमेरिकन पीपल, दो ही लिव्स इन ए स्लम. बल्कि बोलते हैं स्लम में रहने वाला और ज्यादा खुश है, बिकॉज ही हैज वेरी लेस डिमांड्स. और यही जीवन का मूलमंत्र है. A person who is having less demand is more happy. A person having more demands, more unhappy. वो सिद्धांत है. क्यों? क्योंकि उसे प्राप्त नहीं किया तो वो हमें क्या करता है? दुख देता है, मुझे नहीं मिला, नहीं मिला. तो ओके, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन जो स्वामी जी ने जो कहा है कि वहां कि इस एकाग्रता को बढ़ाना है, हमारे विश्वास. एंड इफ यू वांट दिस पीस ऑफ माइंड, so follow the spiritual disciplines of that religion in which you born. आपको किस दूसरे धर्म की स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, हाँ, यू रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, यू मस्ट रिस्पेक्ट. स्वामी जी का वो भी एक है, वी डोंट बिलीव इन टॉलरेशन, वी बिलीव इन एक्सेप्टेंस. जिस प्रकार मैं मेरे हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करता हूँ, उसके देव देवताओं को सम्मान करता हूँ, उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी मात्रा में मैं अन्य धर्मों के भी देव देवताओं को मैं सम्मान करूंगा. नॉट ओनली टॉलरेट, नहीं, सहिष्णु नहीं, उसे एक्सेप्ट करेंगे. तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि किसी को अपना धर्म का ये शांति पाने के लिए हर एक धर्म में वो सारी सुविधा है. वहाँ एवरी रिलीजन इज हैज द सेम पोटेंशियल टू गिव यू पीस ऑफ माइंड. लेकिन कब? जब हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे, हम हमारे उन धर्मों में, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, उस धर्म के आध्यात्मिक साधन आए, हम हमारे जीवन में उसका पालन करेंगे, तो वहां हमें शांति जरूर मिलेगी. आज बहुत खुशी की बात है, आफ्टर कोविड दिस इज माय फर्स्ट ऑफलाइन लेक्चर. आफ्टर कोविड मुझे याद है लास्ट लेक्चर delivered at some place in फरवरी और मार्च. तो उसके बाद तो लॉकडाउन सब. उसके बाद मेरा यहाँ पोस्टिंग हुआ औरंगाबाद से, और दिस इज द फर्स्ट ऑफलाइन लेक्चर. तो ये मेरे स्मृति में हमेशा रहेगा कि यह ऑफलाइन लेक्चर पहली बार मेरा हुआ, ये मेरे स्मृति में भी हमेशा रहेगा. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, माननीय वाइस चांसलर सर का, और सभी जिन्होंने यहाँ DSW डिपार्टमेंट जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया, उन सारे, और जितने भी यहाँ उपस्थित छात्र छात्राएं है, प्रोफेसर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, और जितने भी इस माइक को जो है, सभी के प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करके मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ. धन्यवाद. अगर किसी को प्रश्न पूछ सकते होंगे तो आप कभी भी बाद में भी पूछ सकते हैं. आई विल डोंट वांट टू डिस्टर्ब द डे. कोई अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है स्वामी जी से, माइक है. स्वामी जी बंदनीय बाय रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर साहब और टीम, आपने बहुत अच्छा बताया, आप धन्य हैं. लेकिन आपने ये बताया कि कंसल्टेशन फॉर द टेक्निक्स यू हैव नॉट एक्सप्लेन. अच्छा, आई वुड रिक्वेस्ट योर गुडनेस कि एक टेक्निक बता दीजिए थोड़ा सा. बराबर. एक आपने प्योरिटी ऑफ माइंड के लिए बताया, हाउ वी कैन कीप आवर माइंड प्योर. एक टेक्निक्स इसमें डिफरेंट टेक्निक्स है. जैसे मुझे कोई आज बताएगा, जैसे कि इसमें कंसंट्रेशन का, मुझे कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना है. तो जैसे आज मैं हूँ, अगर मुझे कोई आज कहेगा कि स्वामी जी आप 5 मीटर
दौड़ नहीं पाएंगे। तो मैं बोला हाँ ठीक है, तू जो बोल रहा है ना वो ठीक है, मैं आज 5 किलोमीटर दौड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन आफ्टर 5 months आई विल एबल टू रन नॉन स्टॉप 5 किलोमीटर्स। 5 महीने के बाद मैं 5 किलोमीटर बिल्कुल दौड़ूंगा। तो मैं क्या करूंगा, आज पहले 15 दिन में सिर्फ 500 मीटर दौड़ूंगा रोज, क्योंकि आज मेरे में वो नहीं है, बल्कि शरीर है, सब कुछ है, तो अभ्यास भी नहीं है दौड़ने का। तो मैं रोज क्या 15 दिन सिर्फ 500 मीटर दौड़ूंगा, मैं ज्यादा नहीं। पहले दिन अगर 5 किलोमीटर में दौड़ूंगा मुझे एडमिट करना पड़ेगा, बराबर है ना। तो वो कभी नहीं करना चाहिए, इमीडिएट इतना नहीं करना। तो धीरे धीरे इस चीज को, क्यों ये चीज स्लो ही डेवलप करना चाहिए, तब आप उस पर मास्टरी करेंगे। तो इसलिए तो मैं 500 मीटर रोज हर 15 दिन बढ़ाऊंगा, तो बराबर 5 महीने के बाद मैं 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप विदाउट एनी एफर्ट सहजता से मैं दौड़। वैसे ही टेक्निक्स, ये टेक्निक मैंने एक स्टूडेंट है जो आज एमटेक कर रहा है, वह जय कृष्णा करके, ही वॉज फ्रॉम आंध्रा। वो 12वीं का पास आंध्रा मीडियम से पास किया, और उसका नागपुर में एनआईटी, महाराष्ट्र जैसे एनआईटी कॉलेज, एवरी स्टेट इज हैविंग वन एनआईटी कॉलेज, तो महाराष्ट्र का नागपुर में है। पहले उसका नाम था विश्वेश्वरैया रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नाउ इट इज विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वह जय कृष्णा क्या हुआ उसका, वो तेलुगु मीडियम से एंट्रेंस पास किया, और तेलुगु मीडियम से एंट्रेंस पास करने के बाद अब यहाँ तो सब इंग्लिश में है, सब इंग्लिश में है। अब एकाग्र तो वो आया तो 2 सब्जेक्ट बैक रहा उसका, 2 या 3 सब्जेक्ट। तो आश्रम में आया, बोले स्वामी जी ऐसे ऐसे हुआ, आई एम लिविंग दिस कैंपस बिकॉज आई कैन नॉट कंप्लीट माई, क्योंकि मुझे इंग्लिश में बड़ी दिक्कत हो रही है, और मैं सोचता हूँ मैंने भी पास कर सकता हूँ इस चीज को, 4 साल डिग्री कंप्लीट करना मेरे लिए असंभव है। मैं बोला देखो तुम्हें 4 साल में ही डिग्री कंप्लीट करना किसने बताया है, लेकिन तुम 6 साल के बाद भी डिग्री यहां से लेके जाओगे तो ये एनआईटी का स्टैंप तुम्हारी डिग्री पे रहेगा, और वो स्टैंप बहुत जरूरी है, भले उसको 6 साल लगने दो ना। तो उसे जरा अच्छा लगा, अच्छा मेरे उस सर्टिफिकेट को इतना इंपॉर्टेंस है। बोला हाँ अब आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, तो सब चीजें जल्दी ग्रास्प होगी। उसके लिए क्या करो, यू मेक यूर रूटीन, तुम्हारा रहेगा वो, मैं नहीं कहूंगा उसके बारे में, लेकिन कितने बजे उठने से सोने तक का एक तुम्हारा रूटीन बनाना है, वो तुम्हारा रहेगा। अगर तुम सुबह 7 बजे उठते हो तो रात को सोने तक का एक रूटीन बनाना है, एंड दैट रूटीन मस्ट बी फॉलोड टोटो। अगर तुम 7 बजे उठते हो, उठो, मुझे पता नहीं, क्योंकि रात को अगर जिसको पढ़ाई करने का, जिसको रात को पढ़ाई करने की आदत है, वह व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठेगा। हर एक का अपना अपना होता है वह। अच्छा, किसका कॉलेज सुबह होता है, किसका दोपहर में होता है। तो मैंने बोला एक यू मेक ए रूटीन, उस रूटीन को आपको फॉलो करना है। तो क्या होता है, माइंड स्टार्ट्स चैनलाइजिंग। अभी तक स्कैटर्ड थे विचार, कभी भी उठो, कभी भी कैंटीन में जाओ, हाँ स्कूल के कॉलेज के टाइम में तो आपको जाना ही है उस टाइम, लेकिन बाकी पूरा दिन का जो दिनचर्या थी, रूटीन था, इट वॉज ए स्कैटर्ड, जब जैसे मन में आया। अब क्या हुआ, अब वो जो स्कैटर्ड जो चीजें थी मेरी, उसको मैंने चैनलाइज किया, है कि नहीं। जैसे स्कैटर्ड है वाटर, यूजलेस, बट अगर उसी स्कैटर्ड वाटर को आप एक जगह लाते हो, सो यू कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो उसके फोर्स से। तो अब आपके जो विचार जो स्कैटर्ड थे, अब उसको आपने एक पूरे दिन में बांध लिया। अच्छा, उसके लिए आपको स्ट्रगल है, योर स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल भी आपको आदत नहीं सुबह। और माइंड तो ऐसा है, जब आप उसे बांधने के लिए जाओगे ना, वो बोलता नहीं, वो मानता नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता है मुझे कोई बांधे, है ना। तो लेकिन उस माइंड को, उसकी जो शक्ति है, उस स्कैटर्ड माइंड को, विचारों को इस रूटीन से क्या किया, आपने उसे चैनलाइज किया, और वो, लेकिन उसको टोटो फॉलो करना है बिल्कुल। तो उसको मैं बताया कि देखो तुम बोले महाराज अगर इधर उधर नहीं चलेगा, मैं बोला चलेगा, लेकिन कब चलेगा, एक्सेप्शन। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके फ्रेंड का फोन आया,
अरे उसे फलाना फलाना हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, यस यू मस्ट गो एंड अटेंड हिम फर्स्ट, दैट इज योर ड्यूटी। तो यह इसमें चलेगा, लेकिन कोई फोन कर रहा है, तुम पढ़ाई के लिए बैठे हो, कोई फोन कर रहा है, अरे यार चलो पिक्चर देखने के लिए जाएंगे, देन आपका कॉन्सेंट्रेशन खराब होगा। तो कब मैंने सोचा है कि सुबह तुमने तुम्हारे रूटीन में लिखा है कि 8 से 10 सेल्फ स्टडी, ठीक 8 बजे बैठना है, ठीक 10 बजे उठना है, उसके बीच किसी फोन स्विच ऑफ, सब कुछ स्विच ऑफ। क्या कर सकते हैं? अगर आप ये सब कर सकते हैं, योर कॉन्सेंट्रेशन पावर विल बी डेफिनेटली इंक्रीज। तो हर चीज के बारे में, तो उसे मैं बोला तुम जब जूता निकालोगे तुम्हारे कमरे में, हम एक चप्पल इधर निकालते हैं, एक चप्पल उधर निकालते हैं, नहीं, दोनों भी चप्पल पास में। जब बिस्तर से उठोगे ना, तब बिस्तर में एक भी क्रीज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी क्लीन। दैट तुम्हारा जो ब्लैंकेट है, इट शुड बी वेल फोल्डेड। क्यों? अभी तक हम कैसे भी रखते थे, माइंड स्कैटर्ड। अब आपको एनर्जी लगा रहे हैं उसको, जब वो परफेक्टली फोल्ड करके रखना है, जैसे रेडीमेड, जैसे दुकान से लाने के खरीदने के बाद जैसे हैं वैसे मैं रखूंगा, तो अब आपको एनर्जी लग रही माइंड की, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही, एंड दैट इंक्रीजेस योर कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? अब माइंड को क्या हो रहा है, अब माइंड को आदत लग रही, हर चीज पूरा वहां माइंड देख के करना है मुझे। जैसे कोई झाड़ू लगाते हैं, हम बोलते हैं, मुझे बचपन में याद है, घर वाले बोलते थे थोड़ा आज झाड़ू लगा दे, बोले घर में। अब माँ ने कहा झाड़ू लगाना तो है, तो क्या करते हैं, अब फटफट ऐसे वो लगा दिए। अच्छा, वो कचरा हमको नहीं दिखता था, लेकिन माँ बाद में बोलते थे क्या तूने झाड़ू लगाया, सारा वो कचरा तो वैसे था। मैं बोला अरे मैं तो लगाया। अच्छा, हम तो वो बोलते थे नहीं तुमने ठीक से नहीं लगाया, कचरा तो था, बाद में मैं तो झाड़ू लगाई। मैंने क्या, जब झाड़ू लगाते समय माय माइंड वॉज नॉट देयर। जिसका 100% वह काम करते समय 100% उसका अटेंशन है, तो वहां गलतियां होने की चांसेस 0.01% है। जब हमारे से गलतियां होती हैं कोई भी क्षेत्र में, तो इट मीन्स हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम है। जब गलतियां हमारे से हो रही है, वेरी स्वाभाविक है। तो उसका कारण ये है कि हमारे में पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन उस व्यक्ति में कम है। दैट इंडिकेट्स। तो हमारा भी यही होता है। जैसे आप कुछ चीज भूल जाते हैं, बराबर है ना, वो इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट आवर माइंड, बराबर है ना। किसने मुझे 500 की नोट दे दिया, फोन करके बोला महाराज मैंने आपको 500 रुपए दिए, बोला मैं बोला तो नहीं तो दिए, बाद में देखता हूँ जेब में है मेरे 500 रुपए। क्यों? मैं किसी से बात कर रहा हूँ, लेकिन आई वॉज नॉट, माई माइंड वॉज नॉट अवेयर, है ना। तो माइंड को सब समय अवेयर, वहां प्रेजेंस रखना, उस जगह पे प्रेजेंट रखना 100%, तो वो चीज बराबर ही बनेगी, बराबर है कि नहीं। तो यह होता है। तो इससे धीरे धीरे बढ़ाना है उसको। धन्यवाद स्वामी जी। मैं निवेदन करती हूँ कुल सचिव महोदय प्रोफेसर अरविंद जसोटिया जी से कि वे स्वामी विवेकानंद जी के मानवतावादी मूल्यों पर प्रकाश डालें। प्रोफेसर अरविंद जसोटिया सर। Esteemed Vice Chancellor Professor Manoj Darji, Swami Anantaranand Ji Maharaj, Professor Prakash Ji, the Dean Students Welfare, Professor Anubhav Vora, Chairperson Campus Culture Committee, and august audience. First of all, I greet all of you on this very auspicious occasion. Swami Ji ने स्वामी विवेकानंद के मुख्य सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। उनको छोड़ के जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इट इज़ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट विच वी लाइक टू डू इन दिस ऑडिटोरियम सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक इसेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। बिकॉज उन्होंने कहा कि भारत जो है ये विश्व गुरु है, भारत महान है इसलिए यहाँ ज्ञान की पूजा होती है, ये बात नहीं है। यहाँ ज्ञान की पूजा होती है इसलिए भारत महान है। यहाँ प्रश्न करने वालों को सूली पे नहीं लटकाया जाता, यहाँ प्रश्न करने वालों को स्वागत किया जाता है। तो इफ वी वांट टू नो व्हाट आर द एसेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद's टीचिंग एंड हाउ टू एक्चुअली रियलाइज द टीचिंग,
I would just say that there are only two teachings, two basic teachings of Swami Vivekananda. First is, he says that each soul is potentially divine and the goal is to manifest the divinity within. This is the first teaching of Swami Vivekananda. Each soul is potentially divine and the goal is to manifest the divinity within. Second is that there is a unity of existence. If you understand these two teachings, this would give you the essence of the teachings of Swami Vivekananda, because the word Vivekananda means Vivich Prithkarni, to separate the real from the unreal. Isn't it? So for doing this, for realizing these particular teachings, there are various ways which are mentioned in the Upanishads, which are mentioned in the Vedanta, in the Bhagavad Gita, in the Brahma Sutra Bhashya. I will take just one shlok which is contained in one of the introductory texts of Vedanta, which is called Drik Drishya Vivek. And shlok goes like this: Rupam Drishyam Lochanam Drik, Tad Drishyam Driktu Manasa, Dishyadi Vitya Sakshi Dregev Natu Drishyate. Very simple shlok, and it will give you a sense of what is the meaning of each soul is potentially divine and the goal is to manifest the divinity within. First is that Rupam Drishyam Lochanam Drik. Lochanam means eyes and Rupam means the forms. Now obviously the basic idea of this particular shlok is based on that there is a distinction of seer and seen. Drishta or Drishya are different. For example, I am different from the mic. I am different from the tables and chairs. So Rupam Drishyam means that this world of names and forms and colors, they are seen, and Lochanam, I is the seer. So there is nothing mysticism about this. They come in the category of seeing, and I is the seer. Rupam Drishyam Lochanam Drik. Isn't it? And note one thing, that the Rupam always keep on changing. It always keep on changing. You will go out of the auditorium, then other students would come, or for example, the galaxies change, the countries change, there is a deep distribution of the boundaries. Drishya always keep on changing, the eyes relatively remain the same. This is the first stage of realizing the potential divinity within. So the shlok is Rupam Drishyam Lochanam Drik. Then it says, Tad Drishyam Driktu Manasa. The meaning thereby, that do I not know that my eyes are itching? Do I not know that I cannot see you properly? I can see you properly. I know this. If I know this, that means that eyes are also the seen and there is mind which is the seer. Because the basic principle is there is a difference between the seer and the seen. In the first category, the whole of the world comes in the category of the seen and I is the seer. But if I know the condition of my eyes, if I know that I cannot see properly or I can see properly, that means there is something which even perceives the eyes. So what is that? Shlok says the mind. Mind is the drishta and eyes, they also come in the category of seeing. So I just take an instrument, there are other categories of instruments, for example, the same stands for ears, the same stands for nose and other kind of motor organs and the sense organs. So mind is the drishta. Mind is the seer and eyes come in the category of seeing. Then it says, Drishyadivritya Sakshi. Do I not know that my mind is dull at times? Do I not know that I am stupid at times or I am intelligent at other times? What you are saying, I am following it. What you are not saying, I am not following it. I cannot listen to your boring talk, therefore my mind goes to sleep. I know this. If I know this, then mind also comes in the category of seeing. And there is something which is even witness to that particular mind. That is called the concept of Sakshi, the witness. In Western terminology we will say that X is that factor. In Hindi terminology we say that is Sakshi. That Sakshi, that witness is you, the inner essence, who is witness of the mind, witness of the sense organs, witness of your body and witness of whole of the universe. This is the meaning of Rupam Drishyam Lochanam Drik, Tad Drishyam Driktu Manasa, Drishyadi Vitya Sakshi, Drigev Natu Drishya.
Now, the question arises that, okay, we understand, for example, an anecdote which was given by one of the Swamijis, that a businessman, he goes to a Swami and says that I am very miserable. I've got, suffered loss in my business. And Swamiji says that, do you know that you are miserable? He said, yes, I know that I am miserable. That's why I am saying it to you. If you know that you are miserable, then you are not miserable. You are the knower of misery in your mind. Because Drishta and Drishya are different. The seer and the seen are different. If you try to do this thing, you will try to create a space in your heart, and at the time you will become a little solaced. That businessman becomes very happy and immediately goes and comes back to Swami. Swami, I am very happy. His Swami says, you are not happy. You are the knower of happiness in your mind. Because seer and seen are different. This is the first meaning of each soul is potentially divine. Now the question arises, there are 50 persons sitting in this auditorium, isn't it? There are billions and billions of people and living creatures. How many seers are there? Is it one seer or billions and billions of seers? Because there are billions and billions of bodies also, and billions of instruments, minds also. The answer to this is found in chapter 13 of Bhagavad Gita. Here the Lord Krishna draws the distinction between Kshetra and Kshetrajna. Idam Shariram Kshetram Konteya. This body is the field. And how many Kshetrajna there? One. Kshetrajna Chap Vidhi Mam. That is what is said in the 13th chapter, when there is a distinction between Kshetra and Kshetrajna. It is just like a light which is there in a pot, and there are a number of holes. And when you see lights emanating from the holes, they are individual souls. But in a sense, the self is one. There is only one self which is manifesting in whole of the universe. This is the basic idea, that each soul is potentially divine, and the goal is to manifest the divinity within. Right? This is what is said in the second chapter of the Bhagavad Gita, Nasato vidyate bhav, na bhavo vidyate sat. The unreal never exists, the real never ceases to be. And not only this, further, solace, further optimism comes to you when you know that you are a part of the Lord. Not only you are a part of the God, you are God yourself. 15th chapter says, Mame vancho jeev loke jeev bhoot sanatan man shashtani indriyani prakriti sthani kashyati. That this particular individual is an eternal part of God. Right? So therefore you have to try to create a distinction, and you have to establish yourself in the sense of a witness. You are actually Sakshi, and you are doing it daily. I'll give you an example. Now we are in a waking state and we are interacting. So what is this? The waker and the waking state. When you go to dream, your mind withdraws, then you create your own world. And there is a dreamer and the dream state. And then you go to deep sleep. In deep sleep, you do not remember anything, but when you wake up in the morning, you say, I slept well. I slept like a log of wood. That means there was some consciousness which was aware about your waking state, about your dream state, about your deep sleep state. That consciousness you are. And there is absolutely not even an iota of difference between the real self and God. Not even an iota of difference. That's why in the whole of the Vedic literature, you will find that if you want to arrive at an idea of God or an idea of real self, you have to try to negate things. That's why Nirvana Shatka, Adi Shankaracharya says, Mano Buddhi Ahankar Chittani Naham. I am neither the mind, neither the body, neither this. Who am I? Chidananda Roop Shivoham Shivoham. So you have to negate the whole of the world. This world is Drishya. And
get yourself established in your real self. Isn't it? Mandukya Upanishads, Satma Mantra, it defines the idea of self. You know, because while the senses are outward moving, Katholism says, Pranchi Khani, the senses, परमात्मा ने सेंसेस को हिंसित किया है, प्रांची खानी वित्राणी, right? And in Mandukya Upanishad we have used the word lakshanam, we have used the word shivam, shantam, advaitam. So when you study these particular Upanishads, and when you study the Bhagavad Gita, and when you study your own, the idea of the waking state, the dream state, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इसके बाद एक तुरीय अवस्था है, जिसे हम सहज अवस्था कहते हैं. सहज अवस्था इज योर ओनली, हम कहते हैं हम स्वस्थ रहो. स्वस्थ क्या? सब में स्थित रहो. स्वस्थ, हम स्वस्थ नहीं हैं क्योंकि हम अपने सब में स्थित नहीं हैं, हम पर में स्थित हैं और पर तो हमेशा बदलता रहेगा. You have seen yourself growing as a child, as a youth. Now bodies are, towards the fat end, and then the bodies will disappear. That idea of I-ness, that I, constantly I, it remains. But हम क्या करते हैं? This body is mine, this position is mine, or I am this. इसे कहते हैं अहंता और ममता. अगर आप अहंता भी छोड़ो, ममता भी छोड़ो, तो खाली क्या रह जाएगा? है, एग्जिस्टेंस, प्योर एग्जिस्टेंस. Like table exists, chair exists, countries exist, galaxies exist. Thousands of galaxies exist. There is only existence. Rest of everything is only named and formed. You look at this dice. It is made of wood. If you say that wood and dice are different, you are wrong. Because this is the wood only which is appearing as dice. You take away this wood from the dice doesn't remain. Similarly, God is manifest in the universe. Just like a wood is manifesting in this dice. Right? Why we are not realizing? Because there is a concept which is called that a rope is mistaken as a snake. Or in a desert, there is an idea, appearance of mirage, and you get deluded, isn't it? But when you go there, you will find there is no mirage. Not even a grain of sand is wet by the water. So once you know it, and once you come back, you again see there is again mirage, but you know that it's just an appearance. You enjoy it. You see movies on a screen. Screen is blank, but whole of the movies is projected on the screen. You give Oscars to them. Screen remains blank. That screen is your real consciousness. In Sanskrit we call it Sat Chidanand, existence, consciousness, bliss, absolute. I've taken my time. I don't like to proceed further. There are certain meetings pending. So once again I pray for God that on this day we realize that there is a unity of existence. Each soul is potentially divine. Once established in this particular thought, living becomes very easy. It becomes full of joy. Thank you very much. धन्यवाद सर. अब बड़े ही सम्मान के साथ हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर मनोज धर जी से निवेदन करती हूँ कि वे आज के हमारे मुख्य वक्ता स्वामी अनंतानंदा जी को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित करें. अब मैं निवेदन करती हूँ अध्यक्ष छात्र कल्याण विभाग प्रोफेसर प्रकाश अंतहल जी से कि वे हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर मनोज कुमार धर जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें.
मेरा अनुरोध है अब अध्यक्षा परिसर सांस्कृतिक समिति प्रोफेसर अनुपमा बोहरा जी से कि वे हमारे कुल सचिव महोदय प्रोफेसर अरविंद जसरोटिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। धन्यवाद मैम। आज इस सभागार में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे फॉर्मर डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर जसवीर सिंह जी। मेरा निवेदन है कुलपति महोदय प्रोफेसर मनोज सर जी से कि वे प्रोफेसर जसवीर सिंह जी जो अभी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की पद संभाले हुए हैं कि उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। जसवीर सर, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आएं। अब मैं आज के हमारे विशेष अतिथि तथा हमारे कुलपति महोदय बेहद सक्रिय प्रोफेसर मनोज कुमार धर जी से आग्रह करती हूँ कि वह आज के इस विशेष युवा दिवस पर वक्तव्य देकर हम सबको अनुग्रहित करें। प्रोफेसर मनोज कुमार धर सर। आदरणीय स्वामी अनंतानंदा जी, प्रोफेसर अरविंद जसरोटिया, प्रोफेसर प्रकाश अंताल, प्रोफेसर अनुपमा बोहरा, प्रोफेसर जसबीर सिंह, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, distinguished faculty members, heads of the various departments, non-teaching staff, officers, dear students and scholars. After listening to these thought-provoking lectures, especially by Swami ji and also by our own dear friend, our respected registrar, but a very dear colleague, Professor Arvind Jasrotia. You could see him today in a very different form. So maybe those of you who had any doubt about his knowledge about spirituality, today that is all put to rest. And let me say that it's really very, very heartening to be here this afternoon. हर साल हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और ये आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस सभागार में जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम है, हमारा सभागार है यूनिवर्सिटी का, उसमें फंक्शन हो रहा है और हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच आदरणीय स्वामी अनंतानंदा जी हैं, जिन्होंने कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमें जो उनके सिद्धांत हैं उनके बारे में उन्हें अवगत कराया। मैं पूरे विश्वविद्यालय की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपको हमने आज कष्ट दिया, आप यहाँ आए, आप यहाँ पधारे और हमारे बीच आप पहली बार कोविड के बाद आप यहाँ आए और आपने अपना वक्तव्य रखा और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो उनके सिद्धांत है उनके बारे में हमें अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस दिवस पे जो स्वामी जी का दर्शन है, स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन और उनके लिए जिन आदर्शों को उन्होंने जिया और काम किया, वो युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। भाइयों बहनों, ये आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि हमारा देश युवा देश है। हमारे यहाँ 65% से ज़्यादा जो लोग हैं वो युवा हैं, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। तो आज के दौर में जब हमारा देश एक युवा देश है, ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाना और इसकी जो
ज़रूरत है, जो रेलेवेंस है, उसके बारे में बातचीत करना मेरे ख्याल से किसी और देश के दुनिया में किसी और देश में उतना रेलेवेंट नहीं है जितना कि भारत के लिए है, हमारे देश के लिए है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने से हमारे युवाओं को इस महान देशभक्त और भारत के पुत्र स्वामी विवेकानंद जी के शाश्वत संदेश को फिर से जागृत किया जा सकेगा। एक सफल जीवन कुछ भी नहीं है, ये उनका कहना है, एक सफल जीवन कुछ भी नहीं है अगर ये सार्थक नहीं। युवाओं की सबसे बड़ी खोज एक सार्थक जीवन के लिए है, जो हृदय को प्रेरित करती है, मन को मुक्त करती है और आत्मा को प्रज्वलित करती है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार 4 मंत्रों का पालन करके जीवन को सार्थक किया जा सकता है, और वो 4 मंत्र हैं शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज। शारीरिक खोज का उद्देश्य शारीरिक रूप से युवाओं को किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार करना है, फिजिकल स्ट्रेंथ। सामाजिक खोज का अर्थ है शारीरिक कष्टों को कम करने के लिए उपक्रम करना, उदाहरण के लिए अस्पताल चलाना, अनाथालय और वृद्ध आश्रम चलाना। अगला उच्च स्तर बौद्धिक खोज का है, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता और सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। किसी के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, ज्ञान प्राप्त करना और उसे समाज के साथ साझा करना इस स्तर का उद्देश्य है। उन लोगों के लिए जो किसी गहरी और सूक्ष्म तलाश में है, स्वामी विवेकानंद जी ने उच्चतम स्तर की आध्यात्मिक सेवा का प्रचार किया, यानी ध्यान और साधना, जिसके बारे में हमें स्वामी जी ने अभी बताया। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, आप जो भी सोचते हैं वही आप होंगे। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर होंगे, अगर आप खुद को मजबूत समझते हैं तो आप मजबूत होंगे। उन्होंने ये भी कहा था, उच्चतम के लिए देखें, उस उच्चतम पर लक्ष्य करें और आप उच्चतम तक पहुंचेंगे। जो उन्होंने अभी स्वामी जी ने कहा, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। उनका संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली था। विवेकानंद ने अपने विचारों को लोगों तक सीधे पहुंचाया, खासकर युवाओं को। उनका संदेश जाति और पंथ की बेड़ियों के माध्यम से टूट गया और सार्वभौमिक भाईचारे को भाषा की बात कही। युवाओं को इन रोमांचक और चुनौतीपूर्ण समय में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता का एहसास कराने की आवश्यकता है। एक तरफ युवा राष्ट्र निर्माण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ भूख, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद की चुनौतियां। स्वामी विवेकानंद ने भारत समाज के पुनर्निर्माण के लिए जिन विभिन्न तरीकों का सुझाव दिया, उनमें लोगों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा प्राथमिक साधन था। उन्होंने एक बार कहा था, जो शिक्षा आम लोगों को जीवन के संघर्ष के लिए खुद को लैस करने में मदद नहीं करती, जो चरित्र की ताकत, परोपकार की भावना और एक शेर की हिम्मत को बाहर नहीं लाती, क्या वो शिक्षा कहलाने योग्य है? वास्तविक शिक्षा वो है जो किसी को अपने पैरों पर खड़े होने में समक्ष बनाती। स्वामी जी के लिए शिक्षा का मतलब था धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, जो चरित्र का निर्माण कर सकती है और छात्रों में मानवीय मूल्यों को स्थापित कर सकती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अपने आप को सिखाओ, सभी को उसकी वास्तविक प्रकृति सिखाओ, सो रही आत्मा को बुलाओ और देखो कि ये कैसे जागती। शक्ति आएगी, महिमा आएगी, अच्छाई आएगी, पवित्रता आएगी, और जो कुछ उत्कृष्ट होगा वो तब आएगा जब ये सोई हुई आत्मा
आत्मचेतन गतिविधि से रूबरू होगी। स्वामी विवेकानंद ने देश के युवाओं को कहा कि मानव बनो। उन्होंने ये स्पेशल मैसेज जापान से भेजा था। उन्होंने युवाओं की क्षमताओं पर भी ध्यान दिया। वो चाहते थे कि युवा मानवता की सेवा के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। युवाओं से वो जो चाहते थे वो था लोहे की मांसपेशियां और स्टील की नसें। आज युवा असाधारण रूप से उत्तरदायी हैं और उन्हें बस प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जो कि मुझे लगता है कि हम इस जो सभागार में बैठे हैं हम सबकी एक जिसको प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं वो है। एक नए भारत के निर्माण के लिए स्वामी विवेकानंद का सबसे अनूठा योगदान भारतीयों के मन में जो गरीब लोग हैं उनके लिए काम करना था। उन्होंने जनता के लिए बात की, सेवा का एक निश्चित दर्शन तैयार किया और बड़े पैमाने पर समाज सेवा के आयोजन का नेतृत्व किया। सामाजिक सेवा के लिए भारतीय युवाओं से एक अपील करते हुए विवेकानंद ने कहा था, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, Everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone, are wanted. 100 such and the world become revolutionized. स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों को सरकार की हाल की कुछ नीतियों में जो उन्होंने पहल की है उसका एक उनके विजन का एक प्रतिबिंब देख सकते हैं। जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जिससे कि अखंड मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का जो सपना है वो पूरा होगा। ये पहल भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की कोशिश करती है। इसी प्रकार स्किल इंडिया भारतीय अर्थव्यवस्था में अवसरों के साथ साथ विदेशों में अवसरों के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। ये तो सरकार की नीतियां हैं जिनका कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में देश को और ज्यादा मजबूत करने में इनका योगदान रहेगा। इन सभी पहलों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी और समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि वे इस देश के भविष्य के प्रमुख हितधारक हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की राह पर लाने का प्रमुख कार्यक्रम है। नवाचार, उद्यमिता, इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी साझेदारी और कौशल विकास केंद्रों की हमारे विश्वविद्यालय की हाल ही में जो पहल हमने करी है वो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कुलाधिपति जी की दृष्टि के अनुरूप है। मुझे यकीन है कि ये प्रयास आधुनिक और समृद्ध भारत और जम्मू और कश्मीर के निर्माण के महत्वाकांक्षी कार्य में गेम चेंजर साबित होंगे। और जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए। आइए हम सब एकजुट होकर देश के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता के साथ काम करें, क्योंकि स्वामी जी को बहुत पहले पता लगा था कि ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक। मेरी ओर से आप सबको एक बार पुनः युवा दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। और मैं एक बार फिर से अपने टीम स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर प्रकाश संतान जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ रखा। इनके कार्य का ये एज टीम स्टूडेंट्स वेलफेयर पहला प्रोग्राम था और मुझे खुशी है कि उन्होंने बहुत एक शॉर्ट नोटिस के लिए जो है कार्यक्रम आयोजित किया। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको लोहड़ी मुबारक। और कल लोहड़ी का पर्व जो है वो हम मनाने जा रहे हैं। आज हम थोड़ा सा स्टूडेंट्स के साथ भी वो चाहते थे कि कुछ यहाँ पे मनाया जाए। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस और डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन आपस में
कोलैबोरेट करके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मेरी ओर से आप सब लोग को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करती हूँ अध्यक्षा परिसर सांस्कृतिक समिति प्रोफेसर अनुपमा वोरा जी से कि वे सभागार में उपस्थित सब लोगों का विधिवत रूप से धन्यवाद करें। प्रोफेसर अनुपमा वोरा जी। Namaskar. At the conclusion of this lecture come interaction on the life and teachings of Swami Vivekananda Ji to mark his birth anniversary. I, on behalf of the Department of Students' Welfare and Campus Culture Committee and on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to the august audience. We are grateful to our keynote speaker, Swami Anantaraman Ji from Ramakrishna Mission, Jammu, for his insightful keynote address. Thank you, Swami Ji. We are all inspired by your great words and blessed with your presence on the campus. In fact, the restart of offline programs have taken place with your presence here, and for that we are very thankful to you. I also express our sincere thanks to the guest speaker, Professor Atin Jistotia, Registrar, University of Jammu, for sharing his spiritual thoughts on the occasion and taking us back to our scriptures for finding our true selves. And with this, as rightly pointed out by our Vice Chancellor Sir also, we have come to know another facet of the personality of our registrar. To our worthy Vice Chancellor, Professor Manoj Kedhar, our gratitude and acknowledgement for encouraging and exposing JU fraternity not only to academics and research, but also extracurricular activities and events for holistic progression of one and all on the campus. Thank you, sir, for your vision and encouragement. We are grateful to Professor Jasbir Singh, Controller of Examinations, heads from the departments, faculty, Professor Samriddhi, co-chairperson, and members of the Campus Culture Committee, our guests from Cluster University and Civil Society, students, scholars, officers who have joined us here to celebrate the National Youth Day. For the preparations and successful organization of today's program, at a very short notice, as we all know, I thank Professor Prakash Ankal, Dean Students Welfare, for his meticulousness, and also take this opportunity to thank the dedicated team and office staff. Thank you, IFRA, for conducting the program. And our thanks are also due to both the print and the electronic media for giving a wide coverage to the events hosted on Jammu University campus, which serve as a motivation for the civil society and encouragement for all of us on the campus. Happy Lohri and National Youth Day celebration greetings to you all, and we hope to meet next year in 2022 here again to celebrate the National Youth Day. Thank you, one and all.